So before we start, once again, I'll revise this unit 3, what we have done yesterday, and prerequisites which will be needed frequently. So starting with the same, unit 3, which is Z transform. Yesterday we have discussed the sequence and the definition of the Z transformation. Couple of functions और sequence के लिए हमने Z transformation कैसे find out करना है ये भी दिखा. So we'll just revise that quickly and then we'll proceed. So f of k is a sequence which is nothing but the ordered set of real or complex numbers. So here I have given you example. Sequence f of k can be represented in terms of a set, right? But it is moreover ordered set. So what is meant by that? Now here you can see one arrow. This is the way of representation any sequence. So what that means, this is my 0th element. This is first element, this is second element, this is -1, this is corresponding to -2. So basically this entire set can be written as this is f of -2, f of -1, f of 0, f of 1, and this is f of 2. So f of k basically a function of k and which is represented in terms of sequence means for every integer we can represent all of these functions value in the sequence of that integer. So number line पर जब हम यहाँ पर 0 लिखते हैं we are having set of integers, we can write this as -1, -2 towards minus infinity and this as 1, 2 towards plus infinity. So this is our number line. According to that, indexing of f of k we are going to do. So this is one way of representation. Second way, formula, जैसे मैंने कल बताया था. F of k, sequence f of k, the curly bracket में जो f of k हम लिख रहे हैं, this is called as a sequence f of k, can be written in terms of formula. So that should be written as in curly bracket 2 raised to power k for k greater than 0, greater than or equal to 0. So this is one way of writing the other way of writing sequence f of k. So now for such a sequence, we are finding out Z transform. So the notation for the same is Z transformation of sequence f of k is equal to summation f of k, जो भी आपका फॉर्मूला है या फंक्शन है k का वो यहाँ पर लिखना है, into z raised to power minus k. K is varying from minus infinity to plus infinity. Now here z stands for the complex number, right? So after solving this summation part, ये पूरा infinite sum या सीरीज का इवैल्यूएशन करने के बाद मुझे फंक्शन ऑफ z मिलना चाहिए, दैट इज नथिंग बट माय z ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, वन मोर थिंग वी आर हैविंग व्हिच इज कॉशल सीक्वेंस, मींस सीक्वेंस f of k व्हिच इज डिफाइंड फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो ऐसे सीक्वेंस के लिए हमारा z ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पैटर्न में. Summation k is varying from 0 to infinity f of k z raised to power minus k is equal to f of z. And as I told you in Fourier transform that the three formulas are nothing but our entire chapter, right? So in this unit also, these two formulas are nothing but our entire Z transformation chapter. With the help of this only, we are going to define further formulas and hence the inverse transformation also. Now what kind of prerequisites we will be needing? First, series of geometric progression. Yesterday I told you this. So the infinite sum of the terms which are in GP is equal to a by 1 minus r. A is the first term and r is the common ratio. Provided that this condition holds good for that terms. Okay. Second, ये दो formulas भी हमें लग सकते हैं more or lessly, and expansion for the same we know. So that are also good, that also holds good for mod of x less than 1, right, for both of the cases. Then come to the next prerequisite, which is essential to understand before we go for the z transformation for some standard function. कल हमने some standard functions के z transformation find out करना start ही किया था. So we'll deal with that today also. So for that sake हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसके फ्यू मॉडिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए. नाउ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस i y.
where x and y are reals and I is the imaginary number represented by root of -1. So this is called as a Cartesian form of complex number. Then इसका polar form कैसे represent करते हैं? R into cos theta plus I sin theta, where R is square root of x square plus y square, and what is theta? This is tan inverse of y by x. Am I correct, everyone? Then I noted z bar also over here. What is this z bar is called as? What is z bar is called as, everyone? Conjugate. Inverse of sum. Yes. So it's a complex conjugate of x plus iy. And only the difference is ये middle का sign minus है. So likewise इसका polar representation बन जाता है r into cos theta minus I sin theta. तो ये formula polar representation और ये polar representation complex conjugates का हमें देता है यूलर्स फॉर्मूले जो हमने प्रायर चैप्टर में यूज की है एक दो जगह पर. एंड फर्दर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम ऐसे लिख सकते हैं. So this is about complex number and its complex conjugate. Another expansion we will be needed is this one. अगर आपका y ये condition follow करता है, in that case this particular expansion stands for the binomial expansion where n is any real number and expansion is given in this way. Okay. Then e raised to power y का expansion ये हमें लगेगा one of the other case में. Coming to complex number once again, that is equal to x plus iy के लिए r and theta कैसे find out करते हैं that we know. So mod of z, which is nothing but r, can be written in this way. So I'm imposing three conditions over here on this mod z. First, mod of z is equal to say a. So what it gives us? Square root of x square plus y square is equal to a. Am I right? That means x square plus y square is equal to a square. Right? Is that correct, everyone? What this equation is of? ये किसका इक्वेशन है? x square plus y square is equal to a square. Represents. Circle. Represents circle. Right? Rather, it represents points on circle. Am I right? Next condition I am putting on this mod z that it is less than a. So what this gives us further? X square plus y square is less than a square. Am I right? What this represent? Anybody? Yes, anybody? Mod of x plus y square less than a, what it represents? Be quick. Points inside the circle. Sorry? Points inside the circle. Points inside the circle. That's true. So shall I write down that part as this one? So what this represents? This is the entire interior part of the circle. So shall I write down in this way? Represents interior part of circle. Correct. So this is like a disc. जिसके एज के पॉइंट्स हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. एज के पॉइंट्स मीन सर्कल के पॉइंट्स. थर्ड पार्ट, a third condition which I'm imposing here, and that mod z which is greater than e. Right? What that implies further? This is x square plus y square greater than e. And what this stands for? What this represents? Area outside the circle. Yes, represents area
or points outside the circle is called as the exterior part of circle. So I'll just represent that in this way. So this is the exterior part of our circle, correct? So that we do not. Now, imposing these three conditions, अब हमें ये conditions कहाँ पर use करनी है exactly? Your sequence f of k lies in first box, right? We are carrying that sequence with the help of this capital Z, which is Z transformation, and we are getting here the f of Z, which is nothing but the complex function. ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, राइट? एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स प्लेन में. व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन? दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. सो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मींस y एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस है, x एक्सिस आपका रियल एक्सिस है. एंड ओवर हियर आई मे बी हैविंग द सर्कल और इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. So that particular region we are going to identify with the help of the Z transformation of the sequence. तो यहाँ पर जो भी सीक्वेंस है हमारे पास, उसका Z ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? आइदर सर्कल के पॉइंट्स और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल और इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. मीन्स मुझे ये रीजन के फॉर्म में मिल रहा है f of z. Alright? And as it is a complex function, as it is a region on a complex plane, I have to associate many further properties on that. सो एफ ऑफ के के लिए हम z के साथ यहाँ का रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन्स अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे पास है तो z ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम इसकी जो सीरीज की सम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है. इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वर्जेंस. सो ऑल द प्योर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी वी आर नॉट गोइंग टू चेक ओवर हियर. We are just going to find out what kind of function we are going to obtain and what is its region of convergence. ये find out करना बहुत easy है, जैसे मैंने कल बताया था. Okay. So with the help of these prerequisites, now we can proceed to solve few problems. कल हमने कुछ problems solve किए थे. Problems, or I should write down this as the standard Z transforms. Standard Z transforms. Quickly एक रिवाइज करती हूँ. So I have given you this as the function u of k or delta of k. This is 0 for k is not equal to 0, and this is 1 for k equal to 0. This is called as the unit impulse function. शायद ये नाम कुछ ऊपर नीचे मैंने किया था. तो इसका Z ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सीक्वेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट इंपल्स फंक्शन कैन बी रिटन एज समेशन k is equal to minus infinity to plus infinity delta of k, correct, into z raised power minus k. लेकिन ये डेल्टा ऑफ k बाकी सब वैल्यू को छोड़ के 0 के लिए 1 है, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. सो दिस अपीयर्स टू बी 1, राइट? तो डेल्टा ऑफ k का z ट्रांसफॉर्म हमें मिला है 1, which is nothing but function of z. यहाँ पर मैं z raised to 0 लिख सकती हूँ. Am I right? एंड इसका कॉन्वर्जेंस मुझे मिल सकता है इस वे में. इसका कॉन्वर्जेंस मुझे मिल सकता है सिर्फ ये एक पॉइंट सर्कल वी कैन से हमारे f of z प्लेन पर, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन पर. सो ये एक फंक्शन हमने देखा था. सेकंड हमने ये फंक्शन देखा था u of k देखा था शायद, which is defined as 1 for k greater than or equal to 0, and this is 0 for k less than 0. So इस फंक्शन के लिए भी हमने z ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया था कल. दिस इज z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u of k. Summation k is equal to minus infinity to plus infinity. u of k डिफाइंड है जिस वे में, उसी वे में हमें ये लिखना है. सो फॉर माइनस इन्फिनिटी टू -1 u of k is 0, and for
0 to infinity u of k is 1 into z raised to power minus k. Now simplify this further. हमने इसको expand किया था k is equal to 0 के लिए this is 1, 1 के लिए this is 1 upon z plus k is equal to 2 के लिए 1 upon z square plus and so on, and this is nothing but 1 upon 1 minus 1 upon z. And by applying the rules of geometric progression, this mod of 1 upon z must be less than 1. That implies mod of z is greater than 1. Am I right? So यहाँ पर हमें simplify करने पर मिलता है this is z upon z minus 1 for mod of z greater than 1. So आपका जो ये z transformation है u of k का ये z ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है z अपॉन z माइनस 1, राइट. एंड यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि ये u ऑफ k जो है ना ये हमारा इस बॉक्स में फंक्शन है एंड दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये क्या है 1 है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? दिस इज यहाँ पर तो ग्राफ होगा ही नहीं, सो आई जस्ट स्ट्राइक आउट दिस रीजन. यहाँ पर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यू टुवर्ड्स इन्फिनिटी यहाँ पर लाई करते हैं और इन सारी वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन क्या है 1. तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी. ये जब z ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1. व्हाट इज दिस? दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1. व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? दिस इज द सर्कल सेंटर्ड एट पोल. ये आपका पोल है, ओरिजिन बोल सकते हो, एंड हैविंग रेडियस 1. And we are having all that values greater than 1, means this is the entire exterior part of the circle. So हमारा ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो z प्लेन पर या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल पर जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज अवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. तो हर टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना. You need to just show this particular equation for the region of convergence. Inequality है या equation आएगा, जो कुछ भी आएगा वो हमें सिर्फ शो करना है. Alright? Yes. Now we will proceed to find out some standard expansion of few more functions. Third. So I'm going to give you now sequence f of k as a raised to power k, or it can be written in this way for k greater than or equal to 0. So और एक फंक्शन मैंने दिया है जो k greater than or equal to 0 के लिए है, means I can say this as a Cauchy sequence. Correct? Okay. Now let us apply the definition. Z transform of f of k is equal to Z transform of this function, and now apply this. This is k is equal to 0 to infinity. Shall I apply that directly? a raised to power k, z raised to power minus k. Definition के साथ हम अप्लाई कर रहे हैं. Now k equal to 0 के लिए this is 1, a raised to power 0, z raised to power 0 plus k equal to 1 के लिए a raised to power 1, z raised to power minus 1. 2 के लिए a raised to power 2, z raised to power minus 2 plus and so on. Right? Now can you imagine over here your first term is 1 plus this is a by z plus a square by z square plus and so on. And what is your common ratio here? First term is 1. Common ratio is a by z, and this holds good if mod of a by z is less than 1. Am I right? Therefore, this is written as simplifying z upon z minus a for mod z greater than mod a. तो ये जो भी सर्कल है a रेडियस का, उससे उसके एक्सटीरियर रीजन में जो भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें z ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिल रहे हैं. ऑलराइट, सो हमारा जो सीक्वेंस है वो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस a पर कॉन्वर्ज होता है. सो दैट मीनिंग वी कैन आइडेंटिफाई हियर. इज दिस प्रॉब्लम इज क्लियर एवरीवन? Any doubt anyone for this problem? This is VIMP result from this section. ये बहुत बार हम यूज करने वाले हैं. ठीक है? Okay, next वाला problem.
sequence f of k you have been given as a raised to power k once again. Just hold on. मॅम माईक ऑफ आहे. Yes. So I was talking about z transform of f of k of this function. Now your range or k is less than 0 means it is varying from minus infinity to minus 1. A raised to power k, z raised to power minus k. Am I clear, everyone? This step. Now carefully look out to this problem number 4 or standard z transformation a raised to power k ka for k less than 0, because here we are going to substitute something. It's not straightforward but can be calculated. So I'm going to substitute here this k as say minus r. Alright, that implies minus k is equal to r we can put up. Yes, so minus of k will be equal to r, right? So minus infinity less than k less than or equal to minus 1. This particular interval can be shifted to anyone minus k greater than or equal to 1, that is 1 less than or equal to r less than infinity. All of you agree that? ओके चलो ये भी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर बताती हूँ. दिस इज इक्वल टू समेशन के को हम माइनस आर पुटअप कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैंने के को के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी को यहाँ पर माइनस आर टू इन्फिनिटी पुटअप माइनस इन्फिनिटी पुटअप किया तो आर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. Am I right? Then जो नेक्स्ट वाला स्पैन है r इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर k इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी. तो यहाँ पर भी k को मैंने माइनस आर पुटअप कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स r इज इक्वल टू, सो r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो r हमारा पॉजिटिव सेंस में वैरी हो रहा है, राइट? इसलिए अगर k आपका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में वैरी हो रहा है तो r विद दिस सब्स्टिट्यूशन कैन वैरी बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी. So that simplification we can keep here. Am I right? So ये substitution हम यहाँ पर put up करते हैं, then we can proceed to get our exact result. So r is equal to 1 to infinity. अब a raised to power k की वैल्यू k को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस r से. एंड माइनस k को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? r से, राइट? अब इसे एक्सपांड करते हैं, ओपन करते हैं इस समेशन को r इज इक्वल टू 1 के लिए a रेस्ट टू पावर माइनस 1 z रेस्ट टू पावर 1, r इक्वल टू 2 के लिए a रेस्ट टू पावर माइनस 2 z रेस्ट टू पावर 2, r इक्वल टू 3 के लिए a रेस्ट टू पावर माइनस 3 z रेस्ट टू पावर 3 एंड सो ऑन. सो ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर अगेन इन जीपी. सो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये सारी टर्म्स हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? Your first term is a raised to power minus 1, z raised to power 1. And what is the common ratio? Same. A raised to power minus 1, z raised to power 1. So let us write down here. But this is true if and only if mod of a raised to power minus 1 into z is less than 1. Now simplify this result.
दिस इज z अपॉन a, दिस इज ऑल्सो z अपॉन a. तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई करके मुझे न्यूमरेटर में क्या मिलता है, z अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस z इज इक्वल टू, यहाँ पर दिस इज मॉड ऑफ z इज लेस देन मॉड a. तो अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली. हमारा सीक्वेंस जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है, दिस इज इक्वल टू 0. लेकिन अगर मैं इस हाफ पार्ट के लिए सेपरेटली फाइंड आउट करती हूँ तो ये जाता है एक्सटीरियर पार्ट पर, राइट. और अगर मैं ये सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए फाइंड आउट करती हूँ तो ये जाता है हमारा इंटीरियर पार्ट में, राइट. सो दैट डिफरेंस इज देयर. सो ये सीक्वेंस एंड ये सीक्वेंस, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में डिफरेंस आएगा. हमारे सो आपके ऑल मॉड ऑफ z की वैल्यूज लेस देन मॉड a मींस इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. एंड आपका जो f ऑफ z है या z ट्रांसफॉर्मेशन है वो है ये वाली टर्म, फ्रैक्शनल टर्म z अपॉन a माइनस z. इज दैट पार्ट इज क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है यहाँ तक? प्लीज रिप्लाई. Shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay, thank you. So let me go further for next type of function. F of k is equal to sequence a raised to power mod k for all k belongs to z. Now this is a notation of set of integers. ये set of integers के लिए notation है, ठीक है. So again let us apply the formula. Z transformation of f of k, this is equal to summation k is equal to माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अब हमारा k जो है पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स कवर कर रहा है. Am I clear? So this is a raised to power mod of k into z raised to power minus of k. Now carefully observe here. What is this mod k stands for? Mod k, अगर k हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैरी हो रहा है तो ये कैसे डिफाइन करते हैं हम? mod of k is equal to k if k is greater than or equal to 0, and this is minus of k if k is less than 0. All of you agree? ये हमारे mod की डेफिनेशन है. Yes or no? Yes, ma'am. Right. So इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे फर्दर? समेशन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 k की वैल्यूज ऑब्वियसली f ऑफ z, तो यहाँ पर मैं a रेस्ट पावर माइनस k f ऑफ k a रेस्ट पावर माइनस k लिखती हूँ इंटू z रेस्ट पावर माइनस k प्लस रेस्ट ऑफ हाफ इंटरवल के लिए k इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a रेस्ट टू पावर mod of k एंड z रेस्ट पावर माइनस k. ठीक है. अब यहाँ पर मुझे ये दोनों भी टर्म्स अप्लाई करनी है mod of k की वैल्यूज के लिए. सो कैसे अप्लाई करेंगे? This is summation k is equal to minus infinity to minus 1 a raised to power minus of k आ जाएगा. Am I right? As k is हमारा less than 0 है, right? Z raised to power minus k. Am I writing correctly? Plus k is equal to 0 to infinity के लिए this is a raised to power k only, Z raised to power minus k. So मैं यहाँ पर ये चीज यूज कर रही हूँ. ठीक है. ओके. नाउ कैन यू सिंप्लीफाई? अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो तो जैसे अब तक हमने 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उस सेंस में ये तो सॉल्व हो सकता है बट नॉट दिस वन. ये भी सॉल्व हो सकता है बट माइनस साइन का यहाँ पर डेफिनेटली अगर हमने चेंज नहीं की इंटरवल देन माइनस साइन का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा वहाँ पर. सो विल अवॉइड दैट एंड विल चेंज द इक्वलिटी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 टू समथिंग एल्स.
जैसे हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम में किया था. सो this part, for first part, we'll write out the simplification. क्या होगा simplification? Obviously k is equal to say minus of r, that implies k is equal to minus 1 shifted to r is equal to 1, and k is equal to minus infinity shifted to r is equal to infinity. So हमारी फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी समेशन r is equal to 1 to infinity a raised to r and z raised to, yes, anybody? Z raised to be r, right? Plus summation k is equal to 0 to infinity a raised to k z raised to power minus k. So let us simplify this. This is for r is equal to 1. First bracket में a into z bracket raised to 1 plus r equal to 2 के लिए a into z bracket raised to 2 plus r equal to 3 के लिए a into z bracket raised to 3 plus and so on bracket close. First term के लिए हो गया plus second term के लिए r equal to 0 के लिए this is 1, r equal to 1 के लिए this is a by z, r equal to 2 के लिए this is a by z का स्क्वायर, 3 के लिए a upon z bracket raised to 3 and so on. So I noted the expansion under this sum for both of the terms. अब मुझे बताओ पहले वाले ब्रैकेट के लिए what is your first term? This is az and what is your common ratio? This is also az, right? But this particular term hold good for mod of az less than 1. Then second term के लिए second bracket के लिए हमारी first term क्या है 1 and what is the common ratio? This is a by z, but this holds good for mod of a by z less than 1. All of you agree? अब इसे हमें कंबाइन करना है. Yes, yeah, thank you. अब इसे हमें कंबाइन करना है. कैसे करेंगे कंबाइन? az अपॉन 1 माइनस az एज इट इज रहने देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के सवाल नहीं है यहाँ पर. प्लस यहाँ पर दिस इज z अपॉन z माइनस a, राइट? लेकिन ये दोनों एक ही फंक्शन के एक ही सीक्वेंस के z ट्रांसफॉर्मेशन है. तो यहाँ पर जो ये रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस हमें अलग अलग मिला है वो भी हमें क्लब करना चाहिए. ऑलराइट, तो हम ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर. So this is mod of az is less than 1 implies mod of z is less than mod of 1 upon a, and mod of a by z which is less than 1 can be written as mod a less than mod z. So अगर इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारा यहाँ पर कॉन्वर्जेंस क्या मिलता है? mod of a is less than mod z and mod z is less than mod of 1 upon a. So ये क्या हो गया रीजन? This is the annulus between two circles. ये annulus between two circles, right? कैसे circles? Concentric circles. तो ये है अगर आपका mod of z less than mod of z greater than a वाला पार्ट, राइट? तो mod of z लेस देन 1 अपॉन a वाला पार्ट ये आ जाएगा ये. तो इसका एक्सटीरियर पार्ट एंड आउटर सर्कल का इंटीरियर पार्ट. सो ये हमारा हो गया रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब दिया जाएगा तो ये एक्सप्लेन या ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाएगा, सिर्फ स्टेट करने के लिए बोला जाएगा. सो दिस इनइक्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन. Okay. Shall I go further? Any doubts? Anyone here? Am I audible properly? Please respond, everyone. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, Mona.
Okay, so I guess it is fifth or sixth problem type जो भी है. Now my function sequence in a standard form given as e raised to power ak for k greater than or equal to 0 means it is again a Cauchy sequence, right? Okay. Now z transformation of this sequence can be written as summation k is equal to 0 to infinity f of k, this is e raised to power ak into z raised to power minus k. Now write down your expansion. Open the sum for all of the values. So k equal to 0 के लिए this is e raised to power 0 z raised to power 0 plus k equal to 1 के लिए e raised to power a z raised to power minus 1. Then यहाँ पर k is equal to 2 के लिए so this is e raised to power a, मैं इसे अपॉन z लिखती हूँ एंड ब्रैकेट स्क्वायर, इसे भी e raised to power a अपॉन z ब्रैकेट raised to 1. थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए. सो दिस इज ब्रैकेट raised to 1 प्लस k इक्वल टू 3 के लिए दिस इज e raised to power a अपॉन z ब्रैकेट क्यूब. आई होप आई एम करेक्ट, राइट? तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म ये, उसका फर्दर पावर थर्ड टर्म है, उसका फर्दर पावर फोर्थ टर्म है. सो ऑल ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो इसका सम हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन second term 1 upon 1 minus common ratio, not second term, 1 minus common ratio, this is e raised to power z upon a upon z. But this is true if and only if e raised to power a upon z is less than 1. Alright, now cross multiply the terms. So this is z upon z minus e raised to power a for mod of e raised to power a less than mod z. So this is the interior part of the circle, x square plus y square. Sorry, exterior part of the circle, x square plus y square is greater than mod of e raised to power a. Okay, so ये हो गया हमारा region of convergence, a simple part. Now here I'll give you few questions to solve. All of you just try out these problems. Find z transform of. So let me write down the question. Find z transforms for number 1 f of k is equal to 1 upon 2 bracket raised to k. Second, मैं ये सेम रखती हूँ, दिस इज 1 upon 3 bracket raised to minus k. Third, e raised to power 5k. Fourth, 2 raised to power k plus 3 raised to power k for k greater than or equal to 0. यहाँ पर भी for k greater than or equal to 0, यहाँ पर k less than equal to 0, यहाँ पर k greater than or equal to 0. ठीक है, ट्राई दिस. और नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेवंथ वाले टाइप पर. नाउ आई हैव बीन गिवन द सीक्वेंस f of k as sin of certain ak and k is greater than or equal to 0. वंस अगेन कौशल सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे, राइट? और अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने एज ए प्रीरिक्विजिट्स वहाँ पर लिखे थे. सो लेट मी गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of k which is sin of ak can be written as summation k is equal to 0 to infinity sin of ak into z raised to power minus k. अब आप थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के लिए ऐसे सोच लो कि अगर मैंने k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी डाल भी दी तो z रेज़ टू पावर माइनस k की टर्म्स तो हमारे हिसाब से 1 upon z, 1 upon z स्क्वायर, 1 upon z के फॉर्म में आ जाएगी. बट व्हाट हैपेंस विद फॉर दिस साइन ऑफ ak,
So this will be sine of 0, sine of a, sine of 2a, sine of 3a, sine of 4a, sine of 5a, and so on. But as we know that sine is a bounded function, though k is approaching to infinity, this is lying between -1 to 1. So we cannot get the proper evaluation of the sine of ak. तो मुझे यहाँ पर कुछ और यूज करना पड़ेगा, एंड एज we are dealing with the complex valued functions and its z transform, in that case I can use here the Euler's formulae effectively. What are these Euler formulae? Sine of ak can be written as e raised to power, anyone? iak minus e raised to power minus iak divided by 2i, and this is the first Euler formula. Second Euler formula क्या है? Cos of ak is equal to e raised to power iak plus e raised to power minus iak divided by 2. So हम इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज साइन के लिए एंड कॉस के लिए ऐसे कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके, लेट अस ट्राई आउट दिस. This is equal to summation k is equal to 0 to infinity. यहाँ पर e raised to power I minus I a k minus e raised to power minus I a k divided by 2i multiplied by z raised to power minus k. Am I right? Got it, everyone? Yes, ma'am. Yes. So आगे क्या कर सकते हैं? 1/2i. I k से अफेक्ट नहीं हो रहा है तो बाहर ले सकते हैं समेशन के. Here in bracket this is summation k is equal to 0 to infinity e raised to power I a k into z raised to power minus k minus summation k is equal to 0 to infinity e raised to power minus I a k into z raised to power minus k. Can I use direct formula for the same? Have we dealt with this type of function earlier? इस टाइप के फंक्शन के साथ हमने डील किया है क्या? Anybody? अरे रिप्लाय फास्ट. आज कुठलं सबमिशन वगैरे आहे का तुमचं? No, ma'am. कुठलं सबमिशन आहे? No, ma'am, नाही आहे. नाही आहे. अच्छा, नो मॅम. मला हो मॅम ऐकायला आलं. ओके. आज एकही जण बोलत नाहीये त्याच्यामुळे मी विचारतेय. अवघड वाटतंय का फार हे? हे फार अवघड वाटतंय आहे का? काय झालं, आज मूड नाहीये का कोणाचाच? थांबायचंय का आपण? व्हॉट्स द मॅटर? Okay, we will complete this and we'll stop. ठीक है? Okay. Yes. So 1/2i. Now I can use here the prior formula for e raised to power k, e raised to power ak. इसका प्रायर फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, देन वी कैन गो विद द रूटिंग मेथड.
k is equal to 0 to infinity. This is e raised to power a I a bracket raised to k, and this is z raised to power minus k we are having, correct? So I can write down this particular term as e raised to power a k upon z, right, bracket raised to k. Similar way में यहाँ पर भी this is k is equal to 0 to infinity, this is e raised to power minus I a k upon z bracket raised to k. Am I right? So now with the help of expansion, opening the sum here, we'll get this is 1 upon 2i. यहाँ पर हमें मिलेगा z और 1. आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? k इज इक्वल टू 0 के लिए 1, k इक्वल टू 1 के लिए इस टर्म का पावर 1, k इक्वल टू 2 के लिए इस पर टर्म का पावर 2 एंड सो ऑन. सो इट्स इन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन. सो फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो है e रेज़ टू पावर a I और I a डिवाइडेड बाय z, करेक्ट? देन माइनस यस मैम. 1 अपॉन, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म आपकी आ रही है 0, सॉरी 1, k इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट टर्म आ रही है 1, सेकंड टर्म आ रही है ये टर्म ब्रैकेट रेज़ टू 1, k इक्वल टू 2 के लिए ये टर्म ब्रैकेट रेज़ टू 2 एंड सो ऑन. तो ये भी समेशन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के फॉर्म में है. सो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस I a डिवाइडेड बाय z, राइट? नाउ दिस इज ट्रू फॉर, ये ट्रू होगा अगर e रेज़ टू पावर I a डिवाइडेड बाय z लेस देन 1 है, एंड ये भी ट्रू होगा अगर e रेज़ टू पावर माइनस I a डिवाइडेड बाय z लेस देन 1 होगा तो, करेक्ट? लेट अस गो फर्दर. नाउ दिस इज 1 अपॉन 2i एज इट इज. सिंप्लीफाई करो इसे, z अपॉन z माइनस e रेज़ टू पावर I a, और यहाँ पर z अपॉन z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस I a. Am I right? ओके. सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लेके करके सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट. हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के साथ बाद में डील करेंगे. सो दिस इज 1 अपॉन 2i, यहाँ पर आ जाएगा z इंटू दिस टर्म, सो दिस इज z स्क्वायर माइनस z इंटू e रेज़ टू पावर माइनस I a, यहाँ पर माइनस ऑफ z इंटू दिस टर्म, सो ये माइनस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z इंटू e रेज़ टू पावर I a, द एंटायर टर्म डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट. सो दिस इज z स्क्वायर minus z into e raised to power minus I a minus z into e raised to power I a, and this is plus e raised to power I a into e raised to power minus I a, right? अब यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस है. यहाँ पर e raised to power a e raised to power माइनस a, तो इसका सम हो जाएगा इंडेक्स में 0, e raised to power 0 इज 1, तो ये टर्म आपकी 1 आएगी. यहाँ से z कॉमन निकल सकता है बाहर, राइट? यहाँ से ऊपर से भी z कॉमन निकल सकता है. सो लेट अस टेक दैट आउटसाइड. सो दिस इज 1 अपॉन 2i इंटू z इंटू ब्रैकेट में बचेगा e रेज़ टू पावर I a माइनस e रेज़ टू पावर माइनस I a डिवाइडेड बाय यहाँ पर z स्क्वायर माइनस z बाहर निकलेगा, करेक्ट? यहाँ पर आ जाएगा e रेज़ टू पावर I a प्लस e रेज़ टू पावर माइनस I a प्लस 1. हमारे सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i इंटू, अब ये वाला न्यूमरेटर क्या है? अगर हम प्रीवियस चलते हैं, देखो ये e रेज़ टू पावर I a माइनस e रेज़ टू पावर माइनस I a, तो ये क्या मिलेगा? 2i इंटू साइन ऑफ a, करेक्ट? तो यूलर्स फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. So this can be written as z into 2i sin of a divided by, यहाँ पर this is z square minus z into 2 cos of a plus 1. Am I right? Is that part is clear everyone? अब ये टर्म 1 upon 2i को प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से 2i कैंसिल हो जाएगा. I will get z into sin of a अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos of a प्लस 1. सो ये हो गया हमारा z ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ कम टू द ROC. हमें फर्स्ट क्या मिला है? e रेज़ टू पावर I a
upon mod z less than 1 and e raised to power minus ia upon z less than 1. So this gives you mod z greater than e raised to power ia का mod, and this is mod z greater than e raised to power minus ia का mod. Is that clear? What is that e raised to power ia? This is cos of a plus I sin of a. All of you agree? And Yes, ma'am. e raised to power minus a is cos of a minus I into sin of a. Right? So mod of z यहाँ पर इससे ग्रेटर है, इसका मॉड मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट इज 1. So mod of z क्या मिला आपको? Greater than 1. Similarly for here, mod of z is greater than 1. So दोनों के लिए हमें क्या मिल रहा है? Mod of z greater than 1. So entirely यहाँ पर ROC क्या मिल रहा है? Mod of z is greater than 1 in both of the conditions for both of the terms. Got it? Is that part is clear? तो हमने यहाँ पर किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है, सॉरी z ट्रांसफॉर्म निकाला है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए के. तो आएगा क्या ये z इंटू साइन ऑफ ए मीन्स ये टर्म अपॉन z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z कॉस ऑफ ए. सो साइन की जगह कॉस आ जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस 1 एंड फॉर ROC इज मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1. तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट. Am I clear at this stage? Okay. Yes, ma'am. Yes, so we will conclude our discussion for Z transformation over here. We are just dealing with the standard formalization for Z transformation. Yet we have not started with the properties. So कल वाले lecture में हम properties discuss करेंगे along with the formula for sin of AK, and then we'll go for the problems. Okay. Okay. So Z transformation is quite simple. Z inverse transformation के लिए हमें ये सारी formulas पता होनी चाहिए. So we'll try to explore all that things step by step. So I'll conclude this particular part here. Let me just save this. And now I wish to take that MCQ practice on Z transformation, Fourier transformation, which is essential in view of our IE. So let me just share that part. Or shall we take 5 minutes break or shall I continue? Shall I take break or shall I continue? Break, ma'am. Ma'am, break. Break 5 minutes. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So I'll just open up this. All of you can take break, and this is 12:23 by my watch. हम एक 5 मिनट में start करते हैं. It will not take much time. In Fourier transformation के जो MCQs हैं ना उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. एक 10-12 टाइप है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगी. So join without fail in 5 minutes. Or those who don't want break, stay back.
ठीक है. Okay, shall we start? Okay, let us start. So, first of all, let me revise what we have studied in the integral transform. We have studied in Fourier transform, which is a type of integral transformation. In that, we studied how to find out the Fourier transform, then how to represent integral representation, right? And third, how to find out the inverse Fourier transform. So, based on these three types only, our problems are multiple choice questions are based on. So let us discuss one by one. Formulas will be asked for 1 mark and the solution based problems will be asked for 2 marks. It may happen कि अगर हमारा ऑनलाइन ही चलता रहा and you have to appear for the end term examination and midterm examination, it may be possible that you will get 3 marks questions also. So that is again based on the solving few steps to get your answer. So let us go for it. Fourier integral representation FIR of f of x defined for the interval minus infinity to infinity is given by. अब जब हम FIR लिखेंगे ना, so Fourier transform will be built in, means आपको डबल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखना है. Fourier integral representation means an interval है minus infinity to infinity. Which is the option correct? A option. ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की 2 टर्म्स नहीं है, राइट.
ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि जो कांस्टेंट है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के साथ वो कांस्टेंट यहाँ पर है ही नहीं। एंड 2/π भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इंटरवल्स जो है वो -∞ to ∞ वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है आपको f of x का ओवर द इंटरवल दिस वन। अब यहाँ पर ना तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म ना तो साइन ट्रांसफॉर्म पूछा है, सिंपली प्लेन फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है, राइट? सो योर आंसर इज C option. C option. Yes, that's right. Third, inverse Fourier transform. IFT पूछा है इस इंटरवल के लिए, मीन्स f of x का एक्सप्रेशन आपको लिखना है f of लैम्बडा के फॉर्म में। सो करेक्ट आंसर इज A option. नो, b क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है 2/π ये कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के साथ आता है या इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आता है, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। आंसर होगा A, C या D में से, लेकिन ये यस आंसर A क्यों होगा? क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है लैम्बडा के रिस्पेक्टिव होना चाहिए एंड x आपका कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्टिव। यहाँ पर लैम्बडा के रिस्पेक्टिव दिया है लेकिन यहाँ पे लैम्बडा नहीं है एंड इंटरवल्स भी हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर x के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन दिया है, सिंपल सा चेंज है, बट शायद हरी में हम ये ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। चेक आउट द इंटरवल्स। क्या e to the power minus I lambda x? नहीं ना, माइनस क्यों आएगा जब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे? सी f of x जो है आपका वो है इंटीग्रेशन -∞ to ∞ f of u e⁻⁻i lambda u, ये इनर इंटीग्रेशन है एंड e⁻i lambda x into d lambda ये आउटर इंटीग्रेशन है। तो आउटर इंटीग्रेशन में जो है वो यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन जो है वो f of लैम्बडा के लिए है एंड f of x फाइंड आउट करते वक्त ये वाला साइन माइनस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, so carefully remember the signs as well. Yes, now fourth problem onwards आपके solution based problem solve हो जाएंगे एंड जब भी कभी दिस प्रॉब्लम्स आर क्वाइट सिंपल, जब भी कभी आपको फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन दे के रखा है एंड आपको f of लैम्बडा पूछा है तो आपको सिर्फ वैल्यू f of लैम्बडा की पिक करनी है। तो ये आपका f of x, इसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन दे के रखा है एंड 1/π स्टैंडर्ड फॉर्म -∞ to ∞ e⁻i lambda x into d lambda छोड़ के जो भी बचा है वो हमारा f of लैम्बडा है। तो हमें सिर्फ ये वैल्यू पिकअप करनी है, चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर 5 में सेम क्वेश्चन दिया है, f of लैम्बडा पूछा है, तो सिर्फ पिक करनी है वैल्यू की क्या है, दिस इज द वैल्यू। C option. यस, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मुझे इंस्टेड ऑफ 1/2π अगर यहाँ पर वैल्यू दी होती 3/π, इन दैट केस आपका ऑप्शन क्या होता अलॉन्ग विद दिस टर्म? Six multiply किया होगा उसको। यस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो रिमेंबर दैट फैक्ट आल्सो। सो प्रॉब्लम नंबर 6 आपको सेम वे में करना है। 7, अब आपको फंक्शन दे के रखा है f of लैम्बडा, फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। f of लैम्बडा आपको फाइंड आउट करना है एंड x लेस देन 0 के लिए 0 है। सो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है, साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म नहीं पूछा है। सो केयरफुली जस्ट अप्लाई योर फॉर्मूला। -∞ to ∞ वाले पार्ट में -∞ to 0 वाला 0 हो जाएगा, सो आएगा सिर्फ 0 to ∞ 1 f of u into e⁻i lambda u du। अब यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन 0 to ∞ f of u क्या है 1 e⁻i lambda u du। सो इसका इंटीग्रेशन क्या है e⁻i lambda u upon -i lambda वेरिंग फ्रॉम 0 to ∞। इन्फिनिटी पुट अप करने पर वैल्यू आती है 0, 0 पुट अप करने पर आती है 1 अपॉन -i lambda एंड लोअर लिमिट का माइनस साइन, सो 1 अपॉन i lambda, 1 अपॉन i lambda इज योर आंसर। है क्या ये वैल्यू? Yes, ma'am. B.
इस आंसर बी, राइट। अगर इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू आपको ये माइनस आई अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, सो ये आपको शायद ऑप्शन में दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सो ये भी याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट ऊपर आएगा, रैशनलाइज कर रहे हैं हम इससे, सो रिमेंबर दैट पार्ट आल्सो। यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ लैम्डा, कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन का, राइट। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पर जो इंटरवल है वो माइनस ए से ए के लिए है, रेस्ट ऑफ टू सब इंटरवल्स के लिए ये वैल्यू 0 है हमारी, राइट। तो हमारा इंटीग्रेशन आएगा माइनस ए टू ए, एफ ऑफ यू आपका 1 है, ई रेज़ टू पावर माइनस आई लैम्डा यू डी। सॉल्व करो इसे एंड सिंप्लीफाई योर रिलेशन। अब यहाँ पर अगर इवन एंड ऑड की कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो, बट ओवर हियर दिस इज आई नाइदर ऑड नॉर इवन। सो सिंप्लीफाई करो एंड पुट अप योर वैल्यूज, ठीक है। टेल मी द आंसर। 9th वाला प्रॉब्लम, मैं सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ आपको एमसीक्यूज के, ये सॉल्व करके देखो। एंड शायद ऐसा हो सकता है एलडी वाले प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे, लेकिन यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स अच्छे से सॉल्व करके देखनी है, बिकॉज यू कैन नॉट गेस योर एंड यू कैन नॉट मैन्युअली वर्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। सो एटलीस्ट आपको 1 या 2 स्टेप्स यहाँ पर करके देखने पड़ेंगे। 9th वाला प्रॉब्लम सेम है, एफ ऑफ एक्स देके रखा है, एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एफ ऑफ लैम्डा। एंड ओवर हियर 12th 13th 14th सब तरफ आपको एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है। 16 भी एफ ऑफ लैम्डा, 17 18 19 एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है, 20 ओके 20 डिफरेंट है ये प्रॉब्लम। क्या दिया है, द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आई एफ टी एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर दिस इंटरवल ऑफ एफ ऑफ लैम्डा के साथ आपका आई एफ टी एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया जाएगा। मीन्स क्या पूछा है, इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पूछा है। ऑप्शंस में इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ही दिख रहा है, तो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, पुट अप करना है सिर्फ। वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की, इवैल्यूएट करने के लिए इट्स 1/2 पाई। फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, कोसाइन या साइन ट्रांसफॉर्म नहीं, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ लैम्डा ई रेज़ टू पावर आई लैम्डा एक्स डी लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है एफ ऑफ लैम्डा, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि ऊपर आई है, डिनोमिनेटर इज अ रियल पार्ट, राइट। देन ई रेज़ टू पावर आई लैम्डा एक्स, फॉर्मूला में जो पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं बताती हूँ। दिस इज 1 माइनस आई लैम्डा इनटू ई रेज़ टू पावर आई लैम्डा एक्स को लिख सकते हैं कॉस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस आई इंटू साइन ऑफ लैम्डा एक्स। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करो, दिस इज cos of lambda x, right, and रियल पार्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, सो ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा प्लस लैम्डा इंटू साइन ऑफ लैम्डा एक्स, ठीक है। एंड इसका इमेजिनरी पार्ट प्लस आई इंटू ये आ जाएगा साइन ऑफ लैम्डा एक्स, यहाँ पर माइनस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। ये समझ रहे हो पार्ट, मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। सो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, ये तो नहीं आएगा एट ऑल। यहाँ पर देखते हैं कॉस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स प्लस साइन लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। यस, ये हो सकता है। एंड और कुछ चाहिए हमें, नहीं, दैट्स इट। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस साइन आ रहा है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस साइन दिया है। सो अवर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सिर्फ सिंप्लीफाई किया है एक स्टेप में, एंड व्हाट इज दैट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन ये समझ में आना चाहिए आपको कि आपको आई एफ टी एफ ऑफ एक्स का सिंप्लीफिकेशन पूछा है एंड एफ ऑफ लैम्डा दे के रखा है। एफ ऑफ एक्स आपको इवैल्यूएट नहीं करना है, इसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिखना है। गॉट दिस प्रॉब्लम एवरीवन? 20 वाला समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस, ओके। 21st सेम है, 22nd भी सिमिलर पैटर्न में है। 23 आपको क्या दिया है, आई एफ
फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन FIR दिया है f ऑफ x का, ठीक है। तो ये आपका f ऑफ x है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है आपको। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा तो चाहिए हमें, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी भी चाहिए, यहाँ पर डी लैम्डा भी चाहिए, सिर्फ ये टर्म नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मीन्स इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू x के कौन से वैल्यू के लिए 1 आएगी? 1. x इज इक्वल टू 0. 0 के लिए। अब ये x इज इक्वल टू 0 इस वाले राइट हैंड साइड में कहाँ पर लाई करता है? यहाँ पर लाई करता है या यहाँ पर लाई करता है? मैम 1 में लाइक है ना मैम, mod x less than 1. मॉड x लेस देन 1 में यहाँ पर आपका 0 लाई करेगा, राइट। अब x अगर 0 इस इंटरवल में लाई करता है तो इस इंटरवल के अक्रॉस आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1, करेक्ट। सो फॉर x इज इक्वल टू 0 ये पूरा इंटीग्रेशन मुझे मिलता है 2 अपॉन y इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा कॉस ऑफ 0 की वैल्यू है 1 इनटू डी लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी sin lambda upon lambda into d lambda is equal to pi upon 2. So आपका कौन सा ऑप्शन सही है? B. Correct? So I repeat once again, please carefully try to understand the problem statement. Read it once, twice, thrice until you don't get what exactly you have to do, and then proceed for the simplification. 24. ये भी सिमिलर पैटर्न में दिया है, चेक इट आउट। तो मैं इसका आंसर नहीं बताती हूँ, चेक आउट कि आपको ये सिमिलर पैटर्न में मिलता है या नहीं। ठीक, आंसर्स वैसे देख के रखे तो आप क्रॉस टैली भी कर सकते हो। फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, इसके फॉर्मूलेज 1 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन फंक्शन f ऑफ x ओवर दिस इंटरवल। अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो हमारा फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये तो नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट आना चाहिए, आइदर 1/2 पाई या फिर 2/पाई। तो इन तीनों में से कोई हो सकता है। इवन फंक्शन है, कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, मींस कॉस की टर्म आनी चाहिए। तो ये ऑप्शंस दोनों नहीं होंगे, ये हमारा ऑप्शन सही होगा 2/पाई डबल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f of u cos of lambda u cos of lambda x du d lambda। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेटिंग करूँ तो इसे बाहर लेके आते हैं तो ये हमारा है fc of lambda and the entire term represents our f of x Fourier cosine integral representation। ठीक है, yes, similar way में सेकंड वाले प्रॉब्लम का आंसर। Tell me, अब आपको पूछा है ऑड फंक्शन के लिए साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। आंसर इज, ये तो होगा ही नहीं। D होगा ना, D होगा। इट्स डी, राइट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड, आपको एफसी ऑफ लैम्डा का फॉर्मूला पूछा है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पूछा है ओवर दिस इंटरवल। सेक तो बिल्कुल नहीं होगा, सी ऑप्शन हो सकता है एफ ऑफ यू कॉस ऑफ लैम्डा यू डी यू। ये नहीं होगा क्योंकि डी लैम्डा के रिस्पेक्टिव हम इंटीग्रेट नहीं करते एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए। फोर्थ, अब आपको पूछा है एफ एस ऑफ लैम्डा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। सो ये सारे फॉर्मूलेज 1 मार्क के लिए पूछे जाएंगे आपको। यहाँ पर भी इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स आपको पूछा है, वेयर एज दिस इज गिवन D option. इज इट ए? D. D होगा ना, D होगा ना। अच्छा, यस यस, कॉस में बी होगा, राइट। सिक्स्थ वन, I'm not. It's D because it's dx. D मैम, D। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, यस डी। प्लीज रिकॉग्नाइज दिस डी एक्स ऑल्सो, यस। सिक्स्थ वन,
A option. A A option. मैम A. Yeah, that's right. अरे चुप ना. अब 7th वाले प्रॉब्लम पे आगे हमें सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है. fs ऑफ लैम्डा आपको पिक करना है यहाँ से सिर्फ. दिस इज योर फंक्शन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन देके रखा है. अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला f ऑफ लैम्डा की fs ऑफ लैम्डा की वैल्यू आपको पिक करनी है यहाँ से. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? B option. बी ऑप्शन. यस. सिमिलरली 8 का fc ऑफ लैम्डा आपको पिक करना है सिर्फ यहाँ से. सो आप चेक करो कि आपका रिजल्ट क्या है. देन फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑड फंक्शन. तो ये प्रॉब्लम ऊपर मैम रिपीट हो गया मैम. हाँ वही repeat बोल हो रही हूँ गया मैं. हाँ वही बोल रही हूँ मैं कि ये ऊपर ऑलरेडी हो चुका है. सो आई नॉट रिपीट दैट. सो ये सारी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो शायद यस ये पेज ही रिपीट हुआ है पूरा. I'll get back to the next question now. आपको यहाँ पर भी fs ऑफ लैम्डा से पिक करना है 1 मार्क के लिए. 10th प्रॉब्लम सेम, 11th also सेम, 12th भी सेम है. यहाँ पर 13, 14 सेम है, 15 सेम है, 16 भी सिमिलर फॉर्म में है. ओके नहीं 16 से सिमिलर नहीं है. f ऑफ x आपको देके रखा है, इसका fs ऑफ लैम्डा भी देके रखा है. सिर्फ आपको इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या है, कौन से फॉर्मूला के साथ इवैल्यूएट किया जा सकता है, ये पूछा है. प्रॉब्लम इज अगेन सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है. f ऑफ x का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखना है fs ऑफ लैम्डा को पुट अप करके. दैट्स इट. प्रॉब्लम सिर्फ अलग वे में पूछा है. कौन सा ऑप्शन सही होगा? fs ऑफ लैम्डा दिया है. D होगा ना मैम. एक ही मिनट, D लेट मी option. चेक. यस डी विल बी करेक्ट. m dx यहाँ पर d लैम्डा लेकिन cos है तो d विल बी करेक्ट आंसर. 17. If cosine integral representation of f of x is given in this way, then the value of integral, again a simple question. आपको ये देख के रखा है, इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन देखा है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं. वैसे ये वाला प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ऊपर पूछा गया है. चेक इट आउट. इसकी वैल्यू One. निकालनी है. यस यस बेटा सेम प्रॉब्लम है ये, ऊपर हमने सॉल्व किया है. चेक इट आउट. 18th वाला प्रॉब्लम. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म fs ऑफ लैम्डा इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है. ऑलराइट. fs ऑफ लैम्डा का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो प्रॉब्लम इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. इंटीग्रेशन 0 to infinity f of u, देन साइन ऑफ लैम्डा u du. f of u क्या है आपका? 0 to infinity के लिए 0 to pi के लिए pi/2, pi to infinity के लिए 0. सो हमारा सिंप्लीफिकेशन आएगा 0 to pi. f of u की वैल्यू है pi/2. दिस इज साइन ऑफ लैम्डा u d. pi/2 बाहर आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ लैम्डा u अपॉन लैम्डा वेरिंग फ्रॉम 0 to pi. राइट. सिंप्लीफाई दिस. सो दिस इज pi अपॉन 2 लैम्डा इनटू cos of pi, cos of lambda pi. This is minus of minus 1 raised to lambda pi आएगा ना. This is like cos of n pi minus 1 raised to lambda. तो ये डिपेंड करेगा क्या आएगा. ओके cos of pi lambda के फॉर्म में ही दिया है शायद. ओके सो विल कीप दैट pi lambda. This is cos of pi lambda. And लोअर लिमिट के साथ मुझे मिलता है माइनस माइनस प्लस cos of 0 that is 1 plus 1. So 1 minus cos of lambda pi into pi upon 2 lambda. साइन का डिफरेंस क्यों आ रहा है? So minus minus plus 1 minus cos. Okay, that option is there. C is the correct option. Yes, I was thinking about this B only. 1 minus cos of pi lambda. Yes. So यहाँ पर भी देखो 19 में fs of lambda पूछा है, fc of lambda पूछा है. करेक्ट. यहाँ पर भी fs of lambda पूछा है, fc of lambda पूछा है, f of x देख के रखा. एंड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर कहीं पर भी f of x जो दिया है ना वो x यहाँ पर x स्क्वायर. हमने अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वहाँ पर इसकी वैल्यू है pi/2 1. तो
कोई भी फंक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल में ही है. एफ ऑफ एक्स आपको कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x ऐसे दिया नहीं है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में. रादर एफ ऑफ एक्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में भी बहुत रेयरली दिया जाएगा. कि जब भी कभी मैं एफ ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में देती हूँ या एक्सपोनेंशियल विद नेगेटिव पावर के फॉर्म में पॉजिटिव पावर के फॉर्म में देती हूँ, देन दैट प्रॉब्लम आर वेरी लेंथी टू सॉल्व. सो वो प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए पूछी नहीं जाएंगे. Rather for x square also I need to apply carefully that upper and lower limit. So be careful in the same part. यहाँ पर भी देखो f of x 1 minus x square. मैंने आपको एक लिस्ट दी थी फंक्शंस की, स्टैंडर्ड फंक्शंस की, कि इसके बियॉन्ड ज़्यादा फंक्शंस नहीं हो सकते. तो सब तरफ आप प्रॉब्लम देखो, आपको fc of lambda फाइंड आउट करना है एंड गिवन f of x इज वेरी सिंपल. सब तरफ 20, 30, 32 फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. सो सारे प्रॉब्लम्स फोरियर कोसाइन या साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए है. यहाँ पर हाँ 34 तक आपको स्ट्रेट अवे एफ ऑफ लैम्डा, एफ सी ऑफ लैम्डा या एस ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है. 35 में भी सेम करना है. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी ऑफ लैम्डा फॉर दिस फंक्शन इज आपको एक स्टेप कम सॉल्व करनी है. तो इंटीग्रेशन लेके अपर एंड लोअर लिमिट का जो एक स्टेप है वहां तक आपको सॉल्व करना है सिर्फ. सो एक स्टेप कम ही सॉल्व करनी है. सो दिस इज योर प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दैट. अब यहाँ पर ऐसा क्यों दिया है पैटर्न? क्योंकि फंक्शन आपका डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो जब भी कभी एमसीक्यूज के पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर ट्रिक छुपी होती है. तो ये ट्रिक आपको समझनी है. If it is 2 marks straight away, the function f of x will be given simple. अगर आपको फंक्शन sin x दिया है तो either ये मार्क्स 2 के 3 हो सकते हैं या फिर आपके स्टेप्स कम होके आपको कुछ पार्ट अलग से पूछा जा सकता है. So that simplification you can take into mind कि ये simplification में यहाँ तक करना है. Okay. 36 भी आप सेम देख सकते हो, fs of lambda. 37 उसी सेंस में सॉल्व करना है एंड आपको एक स्टेप कम सॉल्व करनी है यहाँ पर. सो वो स्टेप यहाँ पर देख के रखिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. 4p वाला पैटर्न, सॉल्यूशन f of x ऑफ द इंटीग्रेशन. सो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आपको पूछा है, मीन्स आपको f of x फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. सो आपको ये f ऑफ लैम्डा बहुत सिंपल दिया जाएगा जिसके साथ f ऑफ x आपका इजीली सॉल्वेबल है. f ऑफ x क्या आता है यहाँ पर? दिस इज लेट मी ऑब्जर्व फर्स्ट कि f ऑफ लैम्डा क्या देखे रखा है. cos ऑफ लैम्डा x मीन्स इट इज fc ऑफ लैम्डा. तो इसका फॉर्मूला लिखते वक्त हमें लिखना है 2/π इंटीग्रेशन 0 to infinity fc ऑफ लैम्डा जो देके रखा है इनटू cos ऑफ लैम्डा x into d lambda. Write down the formula correctly. Is equal to 2/π as it is. This is integration 0 to infinity. fc of lambda है क्या? e raised to power minus lambda cos of lambda x into d lambda. Take the integration 2/π. This is e raised to power minus lambda upon 1 plus lambda square into minus cos of lambda x plus lambda into sin of lambda x, varying from 0 to infinity. राइट. सब्स्टिट्यूट द अपर एंड लोअर लिमिट. अपर लिमिट के साथ फर्स्ट टर्म 0 ही आने वाली है, राइट. लोअर टर्म के साथ, लोअर लिमिट के साथ दिस इज माइनस, फर्स्ट टर्म 0, लोअर लिमिट के साथ माइनस ऑफ cos ऑफ 0, सो इट्स -1, राइट. एंड यहाँ पर 0 ही आएगी. सो हमारी टर्म आएगी 2/π. क्या गलत कर दिया मैंने यहाँ पर? एनीबडी कैन रिकॉग्नाइज? कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है मैंने यहाँ पर क्या गलत किया है? मैम 1/λ² का एग्जैक्टली मतलब लैम्डा एग्जैक्टली
Many of the times I used to write down this step purposely क्योंकि बहुत बार students ये step recognize ही नहीं करते. You are finding out f of x. Your formula must go like this. This is 2 upon pi e raised to power minus lambda upon -1 का स्क्वायर, so it's 1. एंड यहाँ पर आप लैम्बडा के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर रहे हो, so x इज वो कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इनटू माइनस cos of lambda x plus x into sin of lambda x. And now bracket varies from 0 to infinity. Infinity किसके लिए पुट अप करना है अब आपको? लैम्बडा के लिए पुट अप करना है, not for x. So this is 2 upon pi into फर्स्ट टर्म आपकी 0 ही आएगी लोअर लिमिट के साथ, यहाँ पर 1 upon 1 plus x square, right? Into this is cos of 0, it's -1. And यहाँ पर x into sin of 0, this is 0. So that completes further simplification. So this 1 upon 1 plus x square into 2 upon pi. 1 upon 1 plus x square into 2 upon pi. So D is the correct option. Got my point, everyone? यहाँ पर किसी को डाउट है? So please note down carefully this particular problems is VIM, P I must say, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गलती होने के चांसेस है. अभी used to treat x as a variable every time, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है लैम्बडा, तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करते वक्त हमें सिंप्लीफिकेशन करना है. So 41, this is our first problem. Further problem. The solution of integral equation, which is this one, given in the problem statement, and hence f of x, whatever it is given, with the एक minute, let me read out the problem. The solution of integral equation is this one, then the value of f of x is equal to, okay, so ये थोड़ा सा simplify करके आपको दिया है. This entire integration is to be evaluated with respect to 0 to 1, because for further values of lambda 1 to infinity are given as 0. So this is one more step you have given, and you have to find out f of x in similar pattern. So 41, 42 you can solve in similar way to get your function of x, right? 43 is also similar, लेकिन यहाँ पर एक step कम दे के रखी है आपको for 2 marks. It's not asked f of x, it is asked to represent your terms. Okay, sorry, यहाँ पर limits नहीं दी है, means you have to evaluate it completely evaluate करना है. 44, again evaluate completely to get your f of x find out करना है. 45, यहाँ पर भी f of x find out करना है. 46, ये शायद कुछ different लग रहा है. Let us see. The inverse Fourier cosine transform f of x of fc of lambda sin of a lambda upon lambda is. Inverse Fourier cosine transform f of x इस फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करना है? सो आपको फॉर्मूला पूछा है f of x फाइंड आउट करने के लिए. सो सिर्फ फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है, दैट्स इट. लेट अस टेक आउट, ये थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है. f of x, अच्छा सिर्फ प्रोडक्ट में जो टर्म आ रही है उससे हमें सिंप्लीफाई करना है. दिस इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये है आपका साइन ऑफ a लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, एंड ये आ जाएगा कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. सो दिस इज cos ऑफ लैम्बडा x इनटू d लैम्बडा. ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? तो ये ऊपर वाली जो टर्म है साइन a इंटू कॉस b, इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है. 1/2 साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b. तो कौन सा ऑप्शन सी होगा हमारा? दिस वन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. देन 47, if the Fourier cosine integral representation of f of x is given to be this one, then the value of integral, okay, so integral representation, cosine integral representation is given, so आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या करना पड़ेगा? दिस सीम्स टू बी लिटिल बिगर. ये वाली टर्म साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा क्यूब, ये हमें चाहिए इंटीग्रेशन में, ये टर्म भी चाहिए.
4/pi नहीं चाहिए, सो लेट अस चेक आउट कि वैल्यू कैसे आती है। एंड cos ऑफ लैम्डा बाय 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर cos ऑफ लैम्डा x है। व्हाट दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या रखी गई है, हाफ रखी गई है। अगर x की वैल्यू हाफ रखते हैं हम यहाँ पर, तो ये x की वैल्यू हाफ यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी, तो f ऑफ हाफ मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कहाँ से फाइंड आउट होगा, यहाँ से। सो x इज इक्वल टू हाफ कहाँ पर लाई करता है, x इज इक्वल टू हाफ इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, राइट। सो x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे लाई करता है। तो x इज इक्वल टू 1/2 के लिए आपकी फंक्शन वैल्यू कहाँ से आएगी, इस एक्सप्रेशन से आएगी। सो इट इज 1 minus 1/2 का स्क्वायर, सो इट्स 1/4, 1 minus 1/4 इज 4 minus 1 3/4। तो मुझे क्या मिलेगा, ये एंटायर एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू f ऑफ हाफ, और f ऑफ हाफ कहाँ से आ रहा है, 1 minus हाफ का स्क्वायर इस एक्सप्रेशन से। सो ये आ जाएगा 3/4। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में ये 4/pi भी है, तो ये यहाँ पर जाके pi/4 के फॉर्म में आएगा। सो दिस इज 3/16। सो ये होगा हमारा इवैल्यूएशन। वेरी हाँ यस, बी ऑप्शन इज देयर। साइन का वेरिएशन तो नहीं आ रहा है कहीं पर, नहीं। सो ए ऑप्शन माइनस साइन के साथ नहीं, ओके 3/16 दैट्स आवर आंसर, राइट। यस, सो यहाँ पर भी 48 में भी आपको सेम करना है, एंड 49 50 तक आपको सेम करना है। 51 एंड 52 आर आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक, यहाँ पर आपको क्या देख रखा है, लेट मी चेक इट, दिस एफसी ऑफ लैम्डा देख रखा है, दिस इज योर इंटीग्रेशन एंड दिस इज योर फंक्शन ऑफ लैम्डा। एफसी ऑफ लैम्डा दे के रखा है, देन व्हाट यू हैव आस्क्ड, देन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x is equal to x cube is given by ओके। सो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, ये f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर m इस फंक्शन के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो u रेज टू पावर m-1, ओके m-1 के लिए है, राइट। एंड ये एक्सप्रेशन मिला है आपको इस सेंस में। तो अगर आपका f ऑफ x x क्यूब है, तो x क्यूब को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 4-1, मीन्स आपकी m की वैल्यू आपको मिल सकती है, व्हाट इज इट, इट्स 4। तो वो m की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। सो दिस इज गैमा फंक्शन ऑफ 4 इंटू अपॉन लैम्डा रेज टू 4 इंटू कॉस ऑफ 4/2। सो ये आ जाएगा cos of 2 pi, that is 1. Gamma function of 4 is 3 factorial and upon lambda raised to 4. So 3 factorial is 6, 6 upon lambda square. Do we have this answer? Yes, option A. Am I right? So 51 हम इस वे में सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर वे 52 भी इस सेम सेंस में सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, हाँ ठीक है। सो चेक आउट दिस आंसर। 51 का आंसर भी चेक करते हैं हम, यहाँ पर है आंसर इट्स A. Got the problem, everyone? Okay, yes, same sheet. I thought it's different. Yes. So these are the problems on Fourier transform and inverse Fourier transform. So yesterday and today we have completed all of the problems which are included in linear differential equation and Fourier transform in view of our internal evaluation, which is planned in next week. Alright. Today we are having a meeting with academic coordinator about the internal evaluation 1, which is planned in next week. So अगर कुछ अलग से decide होता है तो I'll communicate you by tomorrow. Else LD के जो scanned MCQs है I uploaded on the Google Classroom. ये MCQs along with this annotation what I have done I'll upload on the Google Classroom and all of you can cross check it with the same. ठीक है? Okay. So let me just take your attendance and we'll stop. किसी को डाउट्स है यहाँ तक प्लीज स्पीक।
Do you have any doubt? No, ma'am. Okay. So then let me take your attendance and we'll see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 24 is absent. 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3,